It has been at 32 days and the frontier state of Sikkim remains totally cut off from mainland India by road. National Highway 10, the lifeline of the state that borders China, has been hit by landslides and has been shut for over a month now. Traffic movement remains suspended through the national highway. Well, these viewers are the latest visuals of the landslides that have caused extensive damage to the NH10 at different stretches, further delaying the reopening of the national highway. Well, it needs to be mentioned here that on July 8, that a high-level meeting was held in New Delhi with top Union Road Ministry officials, where a decision was taken to hand over the national highway to Indian Railway Construction International Limited, IRCON. We still do not know if the highway has been handed over and if IRCON has started work. As of today, it has become an almost difficult task to reach Gangtok, the capital of Sikkim, by road. The state does not have a rail route yet and the Pakyong airport is almost non-functional. Well, it usually takes about 3 to 4 hours to reach Gangtok from Siliguri via the National Highway 10, but now it is taking up to 8 to 9 hours to reach Gangtok via Lava in Kalimpong district of West Bengal. All traffic to Gangtok has been diverted via Lava. It has become a trucker's nightmare as they are having to drive for at least 15 hours to reach Gangtok via the Lava route. Well, the status of the national highway and Sikkim staying cut off for over a month now is expected to top Chief Minister Prem Singh Tamang's agenda today at the Chief Ministers meet in New Delhi, where Prime Minister Narendra Modi is present. All right. For more on this, I am being joined by our Sikkim correspondent Prakash Adhikari, who has been tracking the story very closely. So Prakash, first of all, tell us, it has been almost a month now that the NH10 is completely cut off. So is the work going on at this point in time to restore, to repair it? जी प्रिया, आज NH10 जो सिक्किम का लाइफलाइन है वो बंद हुआ। आज 32 डेज हुआ है और 32 डेज तक ये रोड टोटली बंद है। 19 डेज जब हुआ था तब ये नेशनल हाईवे खुलेगा इससे बोला गया था और 1-2 घंटा के लिए खोल दिया गया था, मगर फिर से कालिम्पोंग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से खबर आया कि अभी ये व्हीकल मूवमेंट के लिए ठीक नहीं है, फिर से बंद किया गया। और 3 दिन पहले कालिम्पोंग के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से एक वीडियो जारी करके 2-3 दिन में नेशनल हाईवे खोलने की बात कही थी। फिर उसी रात PWD डिपार्टमेंट जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से सर्वे किया गया और बहुत सारे जगह पर क्रैक और स्लिप मिलने की वजह से फिर से बंद किया गया। तो आज 32 डेज हुआ है। 32 डेज तक अभी नेशनल हाईवे टोटली बंद है। और आज जो सुबह बंगाल की PWD डिपार्टमेंट की ओर से कई सारे फोटोज रिलीज किया गया है, तो फोटोज में क्लियरली दिखा जा रहा है कि नेशनल हाईवे क्लियर होने में और बहुत समय लग सकता है। बहुत सारे जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, लिखुबीर हो, 28 माइल हो, 29 माइल हो, तो और NH10 खोलने में बहुत और समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुआ, फिर से तीस्ता रिवर का वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, तो फिर से लैंडस्लाइड होने की चांस होता है, स्लिप होने की चांस होता है, क्रैक होने की चांस होता है, तो इसकी वजह से और समय लग सकता है। और आज जो दिल्ली में नीति आयोग का मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में, वहां पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग खुद उपस्थित हैं और उस मीटिंग में आज मुख्यमंत्री फिर से ये बात को रेज करने वाला है। जी हाँ प्रकाश, सो ट्रकर्स के लिए एक नाइटमेयर हो चुका है। 15 आवर्स लग रहा है गैंगटॉक पहुंचने के लिए। सो प्रकाश, माय क्वेश्चन इज टू यू, इज देयर एनी शॉर्टेज ऑफ कमर्शियल कमोडिटीज के कुछ शॉर्टेज हो रहा है क्या सिक्किम में? जो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो या दूसरे इससे कोई समस्या अभी जी एसेंशियल कमोडिटीज में कुछ शॉर्टेज हो रहा है क्या? इफ वी टॉक अबाउट गैंगटॉक इन पर्टिकुलर अलाउ किया गया है, मगर वो रात को ही चलता है। तो
आने में थोड़ा समय लग रहा है ट्रक को। पहले जो 4 घंटा 5 घंटा में जो ट्रक सिलीगुड़ी से गंगटोक पहुंचते थे वो अभी 14 आवर्स टू 20 आवर्स भी ट्रक को लग रहा है। तो इसके कारण से थोड़ा कॉस्ट हाई हुआ है। जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से कॉस्ट हाई हुआ है, मगर इतना फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज नहीं है। मगर यहाँ गोदाम तक तो आते हैं, मगर यहाँ से सप्लाई करने में कुछ कठिनाई है। जैसे नॉर्थ सिक्किम में हो, लाचेन अभी भी कट ऑफ है, लाचेन में मैन्युअली लेके जा रहा है। और जोरथांग का कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्टोरी किया था कि FCI का गोदाम खाली है बोल के, मगर अभी जो खबर मिला है कि FCI के गोदाम जो जोरथांग के उसमें भी अभी ट्रक आ रहे हैं, वहाँ पर भी सामान लाया जा रहा है। मगर ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है, कॉस्ट हाई होने की वजह से प्राइस हाइक जरूर हुआ है। प्रिया जी हाँ, प्रकाश, हम लोग को रिपोर्ट्स मिला था ऑन जुलाई 18 एक हाई लेवल मीटिंग हुआ था दिल्ली में विद टॉप यूनियन रोड मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। वहाँ पे एक डिसीजन लिया गया था कि इनका हाईवे का काम इरकॉन को सौंपा जाएगा। तो उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है प्रकाश? जी हाँ, आज स्टेट PWD सिक्किम गवर्नमेंट का हो और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, जो बंगाल का पार्ट में जो अभी प्रॉब्लम है वहाँ पर इसको लेकर नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग कॉल किया था। और उस मीटिंग में स्टेट PWD, दोनों ही स्टेट के, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के, और दोनों ही स्टेट के वाटर रिसोर्स और NHPC का, रेलवे का एक हाई लेवल मीटिंग हुआ था। मगर जो बंगाल का पार्ट है वो पहले से ही बंगाल गवर्नमेंट की PWD डिपार्टमेंट को टेंडर देने की वजह से बंगाल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया कि एक काम उन लोगों को ही देना चाहिए। फिर लास्ट में एक कंक्रीट डिसीजन यही हुआ कि जो अभी सेबोक से रंफू तक का जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन का, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो जिस कंपनी काम कर रहा है, इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी, इसी कंपनी को हाईवे का भी काम देने का वहाँ पर डिसीजन हुआ। और अभी एक कंपनी स्टेट PWD वेस्ट बंगाल के साथ मिल के काम कर रहा है, मगर बारिश की वजह से और ज़्यादा क्रैक होने की वजह से थोड़ा उन लोगों को भी कठिनाई हो रही है काम करने में, और नेशनल हाईवे खोलने में और समय लग सकता है। प्रिया जी हाँ प्रकाश अधिकारी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस डिटेल्स।